we have been talking a lot about sales and different models. Different speakers have shared a lot of insightful knowledge with you guys. But we wanted to have this panel so that we can have more direct experiences, learn from these two who has made like big name in the industry and are running a very successful companies as well. And have been like very insightful if you follow them on LinkedIn or in their presence on different sessions as well. So I'm going to talk to them about B2B, and we will like to hear from them that what they are doing and how they actually perceive the strategies or how B2B's whole model is evolving to meet the business needs of the future. So my first question would be that in what ways B2B has been evolving and for the last few years as the technology has been evolving. And the second part would be that what you see will be the changes or would be the impacts in the near future. Ji, thank you so much. Assalamu alaikum everyone. B2B selling is very different from the other kind of selling that we have been listening to in the previous session. B2B में आपको business को जाके as a business touch करना होता है, सबसे important बात जो है वो ये है. और उसमें भी मेरे हिसाब से दो different dynamics हैं. पहले थोड़ा सा उनके ऊपर अगर हम बात करें, local sale करना B2B is a different thing, and international B2B sale remotely करना is a different thing, and possibly like B2B sale internationally करना but वहाँ जाके करना is a very different thing. यहाँ से बैठ के अगर हम मेरे ख्याल में for the purpose of today's conversation या this session, if we talk about specifically remote B2B sale करना for international customers, so that's like what I would like to talk about today. उसमें ज़्यादा डिटेल में कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चलती है B2B में, उसके दो ही फैसेट्स हैं. एक ये है कि हाउ डू यू ब्रांड योर सेल्फ सो दैट लाइक अदर पीपल कैन एक्चुअली टॉक टू यू, या फिर यू गो थ्रू योर रिलेशनशिप मेथड. फॉर एग्जांपल in DevBatch history, which is the company I run, we actually over the period of last 13 years were able to secure 3 Fortune 500 companies over a different period of time. उसमें से 2 customers जो Fortune 500 थे, एक का नाम Staples था, it was our customer, दूसरे का नाम Keurig था. Both of them actually got bought by some other companies, I think few years back. लेकिन वो 2 customers का introduction मुझे मेरे college के roommate ने करवाया था. I mean when I was studying at that point of time. So relationship for that matter is actually very important. If you are able to build good relationship with people, एक बात. उसके बाद ये है कि you actually keep it warm as well and you reach out to them so that you can ask for help. तीसरा कस्टमर जो मेरा Fortune 500 में से था, वो Microsoft was working directly with us for about 2 years, and that customer actually came through not relationship but through tremendous amount of follow-ups, after building the initial contact with somebody. So Seattle Microsoft के through जो है ना, we actually were deploying a team of about 15 people at that point of time, which is 4 years before from today. So evolving में जहाँ तक हम बात करें अभी, ये 2 strategies जो हैं ये core हैं. I mean इन 2 strategies के ऊपर अगर आप focus करेंगे तो आप कभी भी किसी भी time पे दोबारा नया result produce कर सकते हैं. लेकिन मार्केट डायनामिक्स जो हैं दे आर शिफ्टिंग एज वी नो. एक रिसेशन की भी बात हम कर रहे हैं. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 year things are not as good as they used to be. So these kind of things continue. There will be technological changes as well where you will be having different requirements. लेकिन B2B में अगर आप relationship पे और follow up पे जो standard sales का process होता है पे अगर आप अपने आप को apply करेंगे, you will always get good results. और जब आप
लीड जनरेट करेंगे उसके बाद फिर B2B की सेलिंग का टोटली डिफरेंट प्रोसेस होता है. सो मतलब दैट इज अनदर डिटेल वी कैन टॉक अबाउट इफ यू विल आस्क दैट क्वेश्चन, बट टू गिव यू एन आंसर, मतलब दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन. थैंक यू. So, I mean, talking about sales in general is such a vast topic that trying to even B2B is not a narrow enough focus कि हम उस पर बहुत वजाहत में बात कर सकें. But let's talk about two things. उन्होंने evolving की बात की. I'd like to talk about कि what is not evolving and what is perhaps changing. What is not evolving is what came to a surprise as me, right? कि I come from an engineering background. I'm fundamentally an engineering mindset individual. एक बहुत famous sales CEO from लाहौर ने मुझे एक बार कहा था कि तुम्हारा मसला ये है कि तुम इंजीनियर की तरह सेल करते हो. तो मैंने कहा कि यूजी भाई इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि वो क्लाइंट जब तुम्हें सेल दे भी रहा होता है तो तुम कहते हो कि मैं 20% आपको डिस्काउंट पे दे देता हूँ, क्लाइंट को पक्का करते हैं. ठीक है. तो ही वाज लाइक कि सेल या तुम्हें आनी है या नहीं आनी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि तुम फाइनल 20% डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं, राइट? एंड मेरे माइंड सेट में, आई थिंक माइंड सेट की बात करते हैं कि फ्लॉ कहाँ है, राइट? अभी भी शायद है. आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ ग्रेट सेल्समैन. कि वी थिंक कि द क्लाइंट को we are selling them something that they fundamentally don't need, and therefore हम तरकीबें ढूंढ रहे हैं कि इसको घेरा कैसे जा सकता है, राइट? क्योंकि हम अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमने उसे क्या बेचना है. एंड हम अगर उल्टा सोचना शुरू कर दें कि क्लाइंट को क्या चाहिए, हम उसकी नीड कैसे फुलफिल कर रहे हैं, हम क्लोजेस्ट केसेस में उसकी नीड बेहतर कैसे फुलफिल हो सकती है. आई थिंक देयर इज अ लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी perhaps that needs to be inculcated into sales more. दो चीज़ें याद रखिएगा, और मैं ये द यंगर मी के लिए मेरी ये भी एडवाइस है कि मुझे ना एक बार बीच में लगना शुरू हो गया था एज एन इंजीनियर कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या होती हैं. यू नो, फैक्ट्स पे बात है, उसको ये काम चाहिए, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं इस रेट पे कर सकता हूँ, ये देखो मेरा पोर्टफोलियो, मैंने काम पहले किया हुआ है. अगर उसने देना होगा, एंड ऑफ डिस्कशन मिल जाएगा. अगर उसने नहीं देना होगा तो नहीं देगा. अच्छा, पिछले 5-6 सालों में मैंने ये रिगरसली लर्न किया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स स्टिल रूल, क्योंकि एंड में जो दूसरा बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक एआई नहीं है, राइट? वो एक ह्यूमन बीइंग है. उसको आपने देखिए, घेरना एज ए नेगेटिव लफ्ज, राइट? आपने उससे बात करनी है. वो चाहता है कि वो दूसरे साइड पे एक इंसान से बात करे जो कहे कि यार मुझे तुम्हारा मसला समझ आया है, मेरी समझ में तो ये आया है, तुम कुछ इस तरह का चाह रहे हो, ऐसा ही है. वो भी एक ह्यूमन बीइंग है ऑन द अदर साइड, राइट? देयर इज नो परफेक्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन द अदर साइड. सो लंबा तरीका बात करने का ये है कि व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड इज द फैक्ट कि देयर इज स्टिल अ ह्यूमन इंटरेक्शन. और जितना आप ज़्यादा अपनी ह्यूमैनिटी इन द प्रोसेस शो करेंगे, शायद दूसरा बंदा आपको एक बेटर कंपेटिटर के ऊपर प्रोजेक्ट दे दे, बिकॉज वो कहेगा यार अली से बात बड़ी कंफर्टेबली की जा सकती है यार, दूसरा बंदा जो है वो तो मुझे एक्सेल की शीट्स ही दिखाता रहता है, राइट? और मुझे आधी खुद भी नहीं समझ आती, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं इंटिमिडेट भी होता हूँ उससे थोड़ा सा, राइट? तो हैविंग दैट ह्यूमन रिलेशनशिप इज व्हाट हैज़ नॉट इवॉल्व्ड, इवन दो आई थॉट कि ये चीज़ अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी, राइट? सो ये एक फंडामेंटल है. देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैज़ इवॉल्व्ड, राइट? आई थिंक एक ज़माने में, let's go a little bit far back, right? 20-30 years back, the entirety of sales used to be done on a relationship basis. जब भी सेल्स साइकिल्स डाउन होता था तो एक 40 साल के, खैर मैं भी अंकल कहने वाला था मगर, तो मैं भी फिर अंकल बन गया, ठीक है, नो ऑफेंस टू विकास भाई. तो एक 50 साल के अंकल ना अपनी, वो कहते थे बिजनेस डाउन है, तो वो रोलोडेक्स खोलते थे और कहते थे यार इस बंदे को मैंने स्टेक खिलाई थी, इस बंदे के साथ लास्ट टाइम टेक्सास में बात हुई, तो किसी को कॉल मारते थे और बिजनेस आ जाता था, राइट? This idea of push sales, कि I will reach out and be like यार बहुत देर से धंधा नहीं किया, धंधा कहते हैं, हाँ this is extinct now, ठीक? I feel कि sales cycle में what has evolved completely is that you need to be selling what the client wants to be sold to him even if he doesn't know it yet, right? आपने उनको जाके इतनी research के साथ उसमें invest करके, because देखें there is a fast sales cycle. Techniques बिल्कुल work. You pipeline sales, you reach out via emails, you do LinkedIn campaigns, you do a great CMS on yourself, and you pull the content in. But I think this works on low value deals. I think when you start talking about high value deals, you go anywhere $10 million, $50 million, $100 million ki single deals, and yes, those deal items definitely exist. A large part of India's top companies do deal volume of that size. Udhar the mentality is completely ulta, and this is very data driven sales.
आप देखते हो, एंड यू नो वन ऑफ द स्पीकर्स वाज अर्लियर टॉकिंग अबाउट इट, कि जब अपनी प्रोडक्ट मार्केट फिट देखते हो, आप कहते हो कि ओके हमारा एड्रेसेबल मार्केट में हमें $10 मिलियन प्लस की डील चाहिए, और हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं, सेक्टर्स की एनालिसिस करते हैं, हेल्थ केयर में ऑप्शन निकला, यू नो फार्मास्यूटिकल्स में ऑप्शन निकला, लॉजिस्टिक्स में ऑप्शन निकला, इनको क्या बेचा जा सकता है, इनकी नीड क्या है, रिसर्च इट, कौन सी इनकी नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही, कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज आई है, मे बी इन AI, जिसकी वजह से अब उनकी नीड फुलफिल होना शुरू हो गई है, बिकॉज एवरी टीम विच हैज़ अ क्लाइंट ना इज़ बाय नेचर लिथार्जिक, वो बैठे हुए हैं अपनी डील के ऊपर कि जी 5 साल से बिजनेस चल रहा है, आपने जाके उसको रिप्लेस करना है, यू हैव टू फिगर आउट दैट नीड, कि अब AI टूल्स आ गए हैं, अब तो हम आपकी सारी SEO along with influencer marketing AI bots के थ्रू कर सकते हैं. You go to them with that need, you make a customized sales pitch with a prototype in hand. Because large deal cracking otherwise नहीं होती. Sorry थोड़ा सा लंबा आंसर हो गया, मगर मैंने कहा कि I'll give you a distinct point on each. Thank you for such a thorough answer. You guys both really covered the whole B2B paradigm, where all the strategies, possible strategies, you responded. But let's talk about the final thing that you were talking about, that how important it is that once you get through the door through personal connection or through your own previous experiences, but now you are through the door and you are talking to the client, how important it is that your pitch or your proposal is user-centric and what they are actually looking for, or you are just presenting your portfolio, that is your generic portfolio, and you're showing your strengths, but is not user-centric. तो let's just keep diving deep onto then one एक dimension जो आज हमने खोली है, right? ये actually वकास भाई की एक common friend है that he introduced me to, and we learned a lot from him. He told us some ways in which large-scale Indian companies do conglomerates, right? One of the funny things you will come across, आप कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे किसी भी इंडियन से बात करें ना, तो वो आपको कहेगा कि जी हमारे 10,000 बंदों की कंपनी है और हम सारी फील्ड्स में काम करते हैं. अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दिस आंसर मेड नो सेंस टू मी, बीइंग अ वेरी स्पेशलाइज्ड टीम आवरसेल्व्स, हम गेम डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली काम करते हैं. आई वाज लाइक, ये हर इंडस्ट्री में हर बंदा घुसा हुआ है. इट टुक मी अ व्हाइल टू रियलाइज कि अच्छा हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड एंड वर्सेस द रियलिटी. What was the reality was that most of the sales folks I were meeting were consortium sales folks. वो एक बंदा 20 कंपनीज के कंसोर्शियम को रिप्रेजेंट करता था, जिनका कंबाइंड रेवेन्यू मुझे बताया जा रहा था, जिनका कंबाइंड मैन पावर मुझे बताई जा रही थी. एंड दिस टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रैटेजी में वो बहुत कस्टम बिस्पोक सोल्यूशन, वो लिटरली एक साल में टॉप लेवल सेल्स टीम 5 Fortune 500 कंपनीज को टारगेट करती थी विद इन द सेम वर्टिकल. आप हेल्थ केयर ले लें, और उनके लिए एक प्रोडक्ट बना के उनको रिपीटेटिवली इसकी वीपी के साथ मीटिंग की, उसके वीपी के साथ मीटिंग की, लिंक्डइन पे लगाया, उसने नोटिस किया कि उधर मिलने गया हुआ था, किसी नेटवर्क के थ्रू कॉल आई. दे वुड लिटरली ट्राई एंड क्लोज 5 सेल्स अ ईयर वाया मीटिंग 20 पीपल. आई फील कि इतनी डेटा ड्रिवन सेल्स एंड दैट कोलैबोरेशन एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पाकिस्तान में वी हर्ड अ टॉक अर्ली एंड विद समबडी वाज लाइक डाइवर्सिफाई. Absolutely believe in diversification, but companies like Devsinc Systems, these are a rarity, कि they can spread across so many verticals, right? Majority of the लोग जो आए हुए हैं, I'm sure, I mean, I don't mean this as a slight, मेरी भी छोटी कंपनी है, कि we represent smaller companies, and maybe we represent companies with deep specializations. देखिए, आपका जो client है ना, उसको 4 किस्म के आइटम शायद सेल में चाहिए हो. You need to build that collaborative network, कि अगर उसको वेब डेवलपमेंट का काम चाहिए, आप नहीं करते, यू नो समबडी जो उसको कर देगा. अगर उसको SEO का काम चाहिए, यू नो समबडी वो कर देगा, बिकॉज कमीशंस तो आर कमीशंस, राइट? वन फाइनल एनेक्डोट दैट आई विल शेयर, अगेन लर्न फ्रॉम कॉन्फ्रेंसेज, इज दैट समटाइम्स व्हेन वीड बी एट अ बूथ, somebody from China would walk by and they would quiz us. We're like, what do you do? अच्छा, बंदे की जब वो अपनी इंट्रोडक्शन करवाता था ना, तो आप गेम्स बेच रहे होते थे, वो मुझे पता लगता था कि लाइक लिक्विड ऑयल एंड गैस में काम करता है. एंड I'd be like, यार मैं अपना क्या टाइम ज़ाया कर रहा हूँ जी, मैं ये बेचता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो. क्वेश्चन पूछी जा रहा है. मैंने कहा टाइम ज़ाया करने के लिए आया हुआ है. द वे द चाइनीज़ यूज टू ऑपरेट इज़ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता था और 2 घंटे इनटू द शो अपने साथ एक दोस्त को लेके आता था और कहता था, यार मैंने सारी चीज़ें आपकी नीड्स वगैरह समझी हैं, ठीक, ये बंदा ना आपके लिए राइट फिट है. दिस इज समथिंग पावरफुल एंड टू बी लेवरेज्ड. आप अगर अपना सिर्फ बिजनेस सेल कर रहे हो ना, एक कस्टमर को कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है. दैट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट.
आप एक बंदे को ले आए हो अपने साथ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट में, अब उसकी सारी नीड्स में आप उसको हेल्प कर सकते हो, डजेंट रियली मैटर कि आप वो प्रोवाइड करते हो कि नहीं. I think most of it is already covered. बाकी ये है कि once you actually get into the door, जैसे अभी आपका सवाल था, तो उसके बाद में the most important thing is कि आप किस लेवल पे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को. Because you need to research the other persons. I mean human touch की जो बात की है, human sale तो at the end of it human touch पे ही होती है. So you need to empathize, you need to make sure कि you know about the other person, you are well researched, you know their problem statement and you know where exactly to press the button so that you will be able to get the sale. So that is only going to be possible by spending some real time कि आप उनको research करेंगे तो फिर ही हो पाएगा. हमारे यहाँ आम तौर पे जो sales हो रही है ना यहाँ पे smaller companies की, जैसे अली ने भी बात की है, they want to sell anything to everyone. और ये फार्मूला जो है ना anything to everyone का, ये सेल्समैन का सबसे बड़ा फ्लॉप होता है ये. सो अगर आप अपने आप को फोकस नहीं करेंगे, स्पेशलाइज नहीं करेंगे और अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे फॉर एवरी कस्टमर जो कि आपके साथ में टाइम निकाल के बात करने के लिए आ रहा है, तो आप सेल क्लोज करने के लिए, चाहे वो आपकी B2B सेल है, चाहे आप एक इंजीनियर अपवर्क पे बेचने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कहीं कोई भी मतलब एक $10 का भी एक फाइवर के ऊपर टास्क कर रहे हैं $5 का, तो फिर भी नहीं हो पाएगा सही तरीके से. सो दैट इज़ आई थिंक द बॉटम लाइन. वंस यू आर एबल टू कनेक्ट विद द पीपल, तो उसके बाद अगला स्टेप ये है कि उनके लिए तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए. थैंक यू फॉर दैट. और बिल्कुल ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज पहले भी हमारे स्पीकर्स ने ये बात की और that is one of the very important key takeaways from this whole sessions that हम लोग अक्सर सेल्फ रिजेक्शन में चले जाते हैं सेल्स वाले कि मैं एक प्रपोजल दे रहा हूँ, बाकी लोग भी वही प्रपोजल दे रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस देयर. तो ये मल्टीपल स्पीकर्स ने ये बात कर दी है कि ह्यूमन टच इज़ इंपॉर्टेंट. यू नीड टू शो हाउ पैशनेट यू आर एंड व्हाट वैल्यू दैट यू विल ऐड. That is not the financial value but your own core value that you bring as a human, because you really own or take the responsibility of what you are doing. So that is ownership concept is very important for every client. They love it when you take the ownership of your proposal or your work that you are claiming to offer. So thank you for that. Within that we talked about data driven, we talk about AI as well. With the evolution of technology, we have lot of resources where we can get lot of data, reporting systems using the AI. We can get patterns, forecastings and all that. How important that is or how helpful that is while planning for maybe next quarter or next 2 quarters, and actually are these data points or reports helpful or they are creating more pressure than being helpful? You want me to take the first dab at that? Yeah, okay. So I think AI like every generation has a technology जो आपको learn करनी पड़ती है अपनी ही job बेहतर करने के लिए. There are 2 dimensions of this. I like to explain a problem, then I like to explain where AI can help, right? I have said कि I'm not a sales guy. मैं नॉर्मली जब किसी बहुत अच्छे सेल्स बंदे को इन एक्शन देखता हूँ, मुझे लगता है कि इसको कुछ नहीं पता है क्या कर रहा है. फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सालों बाद रियलाइजेशन होती है कि यार ये तो बहुत कुछ कर रहा था जो मुझे समझ नहीं आई. तो आई थिंक एज अ यंगर पर्सन लोअर एक्सपीरियंस आई कैन शेयर माई लर्निंग्स, राइट. मेरे पास एक डायरेक्टर होते थे बिजनेस डेवलपमेंट के. अच्छा, वो ना क्लाइंट को पूछने की जगह कि यार काम है जो कोई मैं कुछ कर सकता हूँ, वो ना 12 हफ्ते के लिए ना उसके पहले दोस्त बनते रहते थे. I used to annoy the hell out of me. मैं आपके साथ में स्टोरी शेयर करता हूँ कि अपडेट्स मुझे क्या मिलती थी. मैंने कहा आज आपने क्या किया? कहता है आज मैंने 20 लोगों की लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर कमेंट किया. मैंने कहा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के पूछते हुए कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. कहते नहीं, वो एक बंदा गाड़ियाँ अप्रिशिएट कर रहा था, मैंने तो जाके कहा कि बहुत अच्छी गाड़ी है, काश मेरे पास भी होती. फिर एक बंदे की बच्चे की बर्थडे थी, तो मैंने कहा मैंने भी अपनी रिसेंटली नीस की बर्थडे इंट्रोड्यूस की थी. अच्छा बाय द वे, ऑब्वियसली दिस इज अ पंच लाइन टू दिस स्टोरी, राइट. मुझे उस वक्त लगता था कि यार मैंने किस बंदे को हायर कर लिया और मैं कहाँ फंस गया हूँ. उस बंदे को तो सेल ही नहीं करनी आती, राइट. 12 हफ्ते के लिए ना उनके पास एक सिस्टम था विच इज़ अ नोन सिस्टम, 14 टच पॉइंट्स. वो कहते थे कि धंधे की बात तो तब होगी, और मेरे एक और दोस्त हैं जो इसको भी रिफ्यूट करते हैं. वो कहते थे धंधे की बात तो तब होगी जब पहले वो बंदा मुझे जान पहचान जाएगा.
वो ये भी ट्रैक कर रहा होता था कि ओ उस बंदे ने ना मेरे ट्विटर के रिस्पॉन्स को रीट्वीट किया है, एंड I'd be like talk to him, he now knows you. कहते हैं नहीं अभी उसको लगेगा मैं काम करवा रहा हूँ. मैंने कहा तो काम ही करवाना मकसद नहीं है, there's something to learn here ना. I was wrong, काम करवाना मकसद नहीं था. उस बंदे को इतना कंफर्ट लेवल दिलवाना ज़रूरी था कि उसको समझ आ जाए कि यार ये बंदा सिर्फ काम नहीं लेना चाह रहा. और मेरे एक कॉलीग है, हमारे एक यंगर फ्रेंड है, वो उससे भी ऊपर से आते हैं. वो कहता है मैं तो उसे टच ही करते रहता हूँ, इवेंचुअली आके खुद पूछता है कि यार तुम इतने अच्छे दोस्त बन गए हो कि इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू. तो वेयर कैन AI हेल्प यू विद दिस? देखें, a tool is always a tool. It is not that there is no replacement for an intelligent human being. Now, look, English is spoken in Pakistan, but it is not perhaps, we have a huge advantage over non-English speaking countries, specifically over India, but we don't have a dramatic advantage over Western Europe and Americas, right? But now it's not an issue. आपने जो भी लिखना है, ChatGPT can write it for you. Use that to your advantage, right? आपके trailers can be made for your products which can have, white skin, eloquently spoken product descriptions. These things, along with data collection. कोई बंदा, there are tools available which if you put in the right profiles will help you track कि इसकी last LinkedIn post किस चीज़ के ऊपर थी, इसकी interest क्या है, इसकी hobbies क्या हैं, मैं इसको कैसे touch point कर सकता हूँ. Very sophisticated ways of doing personal sales, you know. My wife would call this stalking someone's Facebook. She would be correct. मगर believe it or not, it works. You know. Final quip मैं इस पे ये छोड़ना चाहूँगा कि how out of touch with technology I can be, right? मैं ना like every vain individual, I didn't used to operate a lot on social media. तो जब भी मैं पोस्ट करता था ना फेसबुक पे, मुझे लगता था कि यार अब तो लोग मेरे पोस्ट को आके लाइक करेंगे, मगर नहीं करते थे. I used to feel very sad. I'd be like यार मेरे इतने दोस्त हैं, मेरी सोशल मीडिया को कोई लाइक ही नहीं करता. तो because I was an infrequent interactor. तो my wife is a little bit younger than me, right? मैंने एक, और I think mentally तो much माशाल्लाह. तो एक बार ना मैंने उनको सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते गलती से देख लिया. अच्छा, it exploded my mind. She went through 200 people's posts in the space of 5 minutes. मुझे समझना है कि हुआ क्या है. She opened up her wall and she literally flooded through it, going like heart, heart, like heart. माशाल्लाह वो 200 पोस्ट के थ्रू निकल गई. उधर मुझे पहली बार समझ आई कि oh, this is actually how social media works, right? The network effect was कि वो मुझे इसलिए नहीं लाइक कर रहे थे because मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की पोस्ट को लाइक नहीं किया था. तो the lesson to learn is कि business development via these tools is कि if you can track people and you interact with them, human beings are very, very vain. आप 6 महीने के लिए आउट ऑफ पाकिस्तान भी किसी पोस्ट को लाइक करके एक इंटेलिजेंट कमेंट लिखो ना. इंटेलिजेंट कमेंट कैसे लिखना है? उसकी पोस्ट को कॉपी पेस्ट करना है, चैट जीपीटी के अंदर लिखना है, कहना है यार मैं लिंक्डइन पे इस बंदे के साथ एक इंटेलिजेंट कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, मुझे कोई ऑप्शंस दो. फिर उनके बीच में से सिलेक्ट करो कि हाँ ये वाला मुझे थोड़ा सा ना बेहतर लग रहा है, और वो डालो. यू डू दिस विद एनीबडी फॉर 3 months, you'll get a response. For example, this friend of mine that I'm quoting, who I used to constantly make fun of, we're in the games industry now. He eventually got a response from the CEO of Supercell, arguably one of the most actualized mobile game companies, कि उसको कहा कि यार हम भी Supercell पाकिस्तान में बना रहे हैं. तो literally इलिया का response आया था कि यार I wish you the best of luck, कभी कोई mentorship चाहिए हो तो बताना. That's mind blowing, right? So just that's what the tools can be used for, and relationship building in the long term is different in the digital age, but it's still very, very important. Okay, I have 2 more topics to cover. So I'm keeping the questions very topic oriented here so that you can get more and more insights from these two in limited time. One thing that I noticed that we always tap into Northern American market most of the time, not always, but most of the time from Pakistan. But with the evolution and with the growth of technology and ease of it, now many other markets are evolving and there is global expansion possible in many other markets. What are the key points that you will see or focus on when you are trying to expand into other regions other than Northern America or new markets in general? I'm going to speak first because I'm going to speak very briefly and hand it over to Waqas Bhai instead. I believe that every market has its own personality dynamic which allows you to access it. Some sales folks are very good at accessing Western markets, and every market has its own rule because
Saudi, MENA, and Japan actually have something in common. They're very, very traditional people. मैं जिस तरह मजाक करता हुआ घुस जाता हूँ ना into a Western gathering, वो सऊदी बंदा मेरे से उसके बाद बात ही नहीं करता. वो कहता है right? Handing it over to Waqas bhai, I think he has a lot more experience in trying to tap multiple markets, and his insights on how cultures vary and how different markets have to be targeted differently will be great. जी जी, डिफरेंट मार्केट में अगर आपने पेनिट्रेट करना है ना तो अपने आप को लोकलाइज माइंडसेट के साथ में जाना पड़ेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है. आई मीन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर यूएस तो अक्सर लोग उसका टाइम जोन फॉलो करते हैं, उसकी लैंग्वेज फॉलो करते हैं. हाउ कैन दिस बी डिफरेंट फॉर इफ़ यू हैव टू फॉलो चाइना फॉर एग्जांपल. ठीक है, अगर आपने चाइना के साथ काम करना है तो आप कैसे अंदाज़ा नहीं कर सकते. आई वेंट टू चाइना लाइक इन अ फ्यू इयर्स बैक फॉर वन कस्टमर्स आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर सेल्स के लिए. दूसरी या तीसरी मीटिंग के बाद में दे वांटेड मी टू टॉक सम चाइनीज़ एज वेल, मैंडरिन. मैंने कहा मुझे तो कभी नहीं आ सकती. So I mean everybody expects like you to localize with them and only then the work will come in. I know China is a very difficult example for all of us. इंग्लिश हम लोगों ने बहुत पढ़ी भी होती है, सारा कुछ किया होता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश को ही देखें ना, फॉर वन ऑफ आवर बिजनेसेस वी डू सेल्स इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर हम सेल करते हैं. तो उसके लिए जो सेल टीम है दे ऑपरेट इन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस आवर्स, just like the way you will do sale team for USA or Northern America. In those hours you have to actually operate your teams for the region you are tapping or trying to target. वहाँ पे उसके टाइम के मुताबिक चल जाते हैं. और इसमें एक सेकंड एस्पेक्ट जो है वो आपको उस जगह के एथिक्स, उस जगह की कल्चरल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. आपको अमेरिकन कस्टमर्स जो हैं वो ईमेल पे ही प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन आपको मिडल ईस्ट में कभी नहीं मिलेगा इस तरीके से. बहुत लकी है, मतलब सब कुछ पहले से सेट है तो कोई आपको दे दे, लेकिन आपको वहाँ पे पर्सनल टच चाहिए होता है. जैसे पाकिस्तान में जब तक आपको बिठाएंगे नहीं टेबल पे, चाय नहीं, आपको मतलब आपको 7 मीटिंग्स नहीं करवाएंगे जब तक, आपको बिस्किट सारा कुछ मतलब है कि पूरा प्रोटोकॉल नहीं देंगे जब तक, तो उस वक्त तक आपको कस्टमर यहाँ पे प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं करेगा. इवन प्राइवेट सेक्टर, नॉट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आपको जो है ना एक्सपेक्ट्स के लाइक थोड़ा सा चुक के रखना पड़ता है उसको. आप वो करेंगे तो फिर आपको काम मिलेगा. तो मिडिल ईस्ट में अगर आप दुबई में कोई काम ढूंढ रहे हैं, सऊदी अरब में कोई काम ढूंढ रहे हैं, तो ये सब के सब दे वांट यू टू एक्चुअली डू देयर वर्क, even in the sales process, do their work as well as your own work, and then like अगर आप उनको फिर convince कर पाएंगे तो they will give you sale. So ये तीन चीज़ें हो गई, लैंग्वेज, टाइम जोन्स, और तीसरी चीज़ जो है कल्चरल वैल्यूज़. ये तीनों चीज़ें जब आप इंटैक्ट अगर एक कंबाइन करके पैकेज बनाएंगे तो नई मार्केट में जाया जा सकता है. लैंग्वेज आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप इवन यूके की भी हम सेल करते हैं एक बिज़नेस के लिए. The same agent who is actually selling for America cannot effectively sell for UK market. There has to be, because उनकी ना अंग्रेज़ी तो सेम है, स्पेलिंग के थोड़े बहुत फ़र्क होते हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है इंग्लिश में. So if you don't know that, like you will not be able to do good job. आप कर तो लेंगे सेल, अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे, जी हम तो अमेरिका में भी करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं और अपने रात को ही काम करते हैं. बट यहाँ बात है कि अगर इफ़ यू वांट टू टैप इनटू $10 million, $1 million, $500,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने लेने हैं, 20 बंदों का, 50 बंदों का वहाँ से आपने ऑर्डर लेना है, फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक इट गोज. I'd like to add a little story because I'm more of a storyteller than I'm a sales guy, right? Somebody, we were in publishing talks for one of our new games that's coming out. And the gentleman on the other side was, कभी-कभी ना आपके सुपर जीनियसेस के साथ पाला पड़ जाता है, आपकी खुद भी हिल जाती है कि बंदे ने कितना सोचा हुआ है. तो मैंने उससे कहा कि यार किस रीजन के लिए गेम उठाओगे, तो देयर लाइक यार हम हर रीजन के लिए उठाते हैं. आई वाज लाइक श्योर, मगर आई एम श्योर देयर आर सम रीजन्स यू स्पेशलाइज इन. तो उसने कहा लेट मी शो यू अ लिटिल ट्रिक. उसने ना अपनी मेन वेबसाइट खोली जो उनकी पहली अपकमिंग लॉन्च गेम थी, और उस पर ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेसेस वर बीइंग हिट.
एक पेज होता है स्टीम के ऊपर ना गेम का कि अच्छा ये पे रेडिट पे हिट हो रहा है, डिस्कॉर्ड की ये कम्युनिटी है, वेब की ये है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है आई गेट इट, ये तुम लोगों की एक्सपर्टीज़ है तो तुम लोग ये टूल्स हर जगह यूज़ करते हो। कहते नहीं वॉच, वो ऊपर वेब ब्राउज़र में गया और उसने लोकलाइजेशन चेंज की, the entire page changed from a very sophisticated, well written English page with links to Discord and all and a neat page, अचानक से to something which would be out of a 4chan की thread. उधर बैदू की लिंक्स थी, उधर बीच में कार्टून गिफ्ट्स डले हुए थे, पॉलिटिकल जोक्स मारे हुए थे बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, एंड आई वाज लाइक व्हाट द, दैट वाज देयर एक्चुअल फार ईस्ट एशियन की वेबसाइट कंप्लीटली इन जापानीज, all full of Pokemon jokes and memes and gifs playing in the middle, and he was like, this is what I'm trying to show you, कि आप हर मार्केट को उसकी ऑडियंस को फ़र्क टारगेट करते हो, राइट? एंड आई नेवर सीन दिस बिफोर, आई बीन इन द गेम्स बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 15 years नाउ। मुझे उससे रियलाइज़ हुआ कि जो लोग ऑपरेट करते हैं उन्होंने टेक्निक्स निकाली हुई हैं ट्वीक करके सेल्स हार्नेस करने की। Very relatable and very true. It is so important that after the language, the culture and ethical values of each region is very different, and most importantly for us who directly talks to the customers, their sense of humor is very different. We likes to crack joke to make an environment comfortable or relaxed, and it is very important that you know their sense of humor before cracking a joke. It might be offensive in some areas and might be very acceptable in others, so you need to be very well versed on that. One last question I would like to ask, that both from sales perspective and from the customer's perspective as well, we are facing similar challenges, similar problems and similar things that we are trying to tackle on our own. How important partnerships and collaborations are, where you initially also shared about Indian salespersons who are doing sales for multiple clients and Chinese as well. Why that environment we don't have in Pakistan? We are doing individually dealing with similar things, and what kind of key factors are there that we can incorporate to have that kind of collaborative and partnership oriented culture here in Pakistan, so that we can help each other grow? विकास भाई मुझे बहुत बुरी तरीके से एक जोक आया हुआ है, पहले बताया। हाँ ओके राइट। अच्छा, उन्होंने कहा कि कल्चरल सेंसिटिविटी टू जोक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिकग्नाइज। उसके ऊपर विल कम टू द क्वेश्चन, आई एम श्योर वी हैव अ लॉट टू शेयर। I'd like to give you a brilliant example of this. I will try not to name the relevant people, ठीक है? There was a Canadian delegation over to meet local government folks, ठीक है? One of the IT directors, again I shall not name, उन्होंने अपनी तरफ से ना फ्रेंडली तरीके से कुछ कहने की कोशिश की थी, ठीक है? He was trying to be friendly. I'm sure that there was no maliciousness meant. But I want to tell you कि उन्होंने कहा क्या था. He went over to one of the ladies that was leading the delegation, and he literally said कि माशाल्लाह वैसी बड़ी बात है कि आपकी इतनी हेल्थ है, मगर आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लेती। अच्छा, मैं तो ना ये सुना तो मेरी उधर हिली गई। मैंने कहा यार व्हाट द हेल डिड ही जस्ट से, राइट? मगर खातून को दाद दें, राइट, कि उन्होंने फ्लिंच भी नहीं किया इस बात पे। उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के कहा कि वो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू टू से सो। एक्चुअली पता है ये आपकी कल्चर में थोड़ी सी ना बात स्पेशल है, फैट शेमिंग। हमारे कल्चर में तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात समझी जाती है, बल्कि सेहत की निशानी है। तो आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो अपनी तरफ से एक बहुत फॉरेन कल्चर में थी, somebody could have taken great offense, but also super appreciate the fact कि हमारे जेंटलमैन थॉट के किसी को जाके कहना कि माशाल्लाह इतनी मोटी है मगर आप टेंशन ही नहीं लेती। अमेजिंग। तो प्लीज यस, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन जरा रिपीट कीजिएगा। Okay, so the question was about partnerships and collaborations, how important they are, and what key steps that we can take to have such environment. So I am a firm believer of collaborations, and in fact had been trying everything कि इसको हम लोग realize भी करा सकें. Unfortunately, we are not as far ahead like as we should have been by now. But I have a belief, like, this is not very far when more and more people will join hands. And I think event like this and where, like, sales people are coming in, because they have to first of all see, like, कि उन्हें जो challenges आते हैं वो कैसे address हो सकते हैं. So जब ये realization पक्की दिमाग में ना बैठ जाएगी जाके ना, तो फिर collaborations की requirement खुद ब खुद आ जाएगी कि
ये कैसे होना है। और इसमें एक एलिमेंट जो पाकिस्तान में वैसे थोड़ा सा जरा अच्छा नहीं है, वो है पाकिस्तान का इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू जो है एक्सटर्नली, जो ख़ास तौर पे अगर आप B2B की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वी हैव हैड लाइक यू नो आवर ओन मिसफॉर्चून्स ऑफ लास्ट डिकेड एंड हाफ, और इनफैक्ट मे बी 2 डिकेड्स। तो उसकी वजह से भी मतलब है कि हम यहाँ से रिमोट सेलिंग करते हैं, तो रिमोट सेलिंग में आम तौर पे जो है वो इतनी ज़्यादा कंसोर्शियम या इन चीज़ों के बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके इवेंट्स अटेंड करते हैं, जैसे US में बड़ा कोई इवेंट है, अगर आप वहाँ जाके सेलिंग करेंगे तो देन यू एक्चुअली नीड टू शो दैम यू आर मच मच सुपीरियर एंड बिगर दैन प्रॉबली व्हाट यू एक्चुअली आर। तो वहाँ पे जाके सेलिंग अगर करनी है तो लाइक GDC पे जाना है, MWC बार्सिलोना जाना है, यहाँ पे जाइटेक्स होता है, लीप होता है, वहाँ जाके आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो 50 डेवलपर्स हैं, वो कहते हैं अच्छा, so 50 developer for them like you know is nothing, like you know this is actually not even a single order for many big customers B2B के। so अगर आपको बड़ा कोई कस्टमर टैप करना है तो you have to project yourself to the league of 10,000 people, and those 10,000 people you have to portray कि मेरे पास में 10,000 इंजीनियर्स की कैपेसिटी है, and this is what I do, this is what how I operate। उसके लिए कंसोर्शियम ज़रूर बनेंगे। सो आई थिंक मोर एंड मोर पीपल आर लाइक लास्ट 3 साल में 4 साल में अब इवेंट्स पे जा रहे हैं। पहले मतलब ओनली फ्यू कंपनीज वुड गो टू इवेंट्स वेयर लाइक जाइटेक्स, लेकिन अब जो है फॉर रीचिंग है, अमेरिका से लेकर आप हांगकॉन्ग ऑस्ट्रेलिया तक इवेंट्स में लोग, चाहे वो पाशा के थ्रू जा रहे हैं या मतलब है कि अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं, बट मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग, एंड व्हेन द नीड विल बी क्रिएटेड आई थिंक थिंग्स विल सोल्यूशन विल ऑटोमेटिकली कम इन। अच्छा, मैं अब I'll give the serious answer, right? So even my serious answer starts with an anecdote. One of the top Pakistan IT companies के जो business development के head थे, वो at one point मेरे बैचमेट होते थे, मेरे साथ ही बैठा करते थे, राइट? तो मुझे किसी ने बताया कि यार वो तो कंपनी बहुत धूम कर रही है, तो वो बंदा बहुत अच्छी सेल्स कर रहा है। वो लाइक हो ही नहीं सकता। फाइन, मैं उससे जाके बात की, मैंने कहा यार सेल्स ऑपरेंडी समझा। तो कहता है यार मैं किसी के साथ बैठा हुआ था कॉन्फ्रेंस पे, तो मैंने नोटिस किया वो बंदा सिगरेट ब्रेक के लिए बाहर गया है। मुझे उसे रिकग्नाइज़ कर लिया था कि एक बड़ी टॉप कंपनी का ना वो सेल्स का गाय है, तो मैं उसके साथ ही बाहर चला गया। मैंने कहा क्या घटिया कॉन्फ्रेंस है, चल जाके कहीं खाना खाते हैं। तो खाना शाना के साथ फिर हमने साथ में मूवी देखी, यू नो अच्छी फ्रेंडशिप होगी। तो मैंने उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। तो उसने कहा यार टाटा के साथ। कहता है टाटा तो बड़ी छोटी सी कंपनी है, आधे बंदे तो हमारे से लेती है, 10,000 हमारे पास बंदे हैं जो टाटा के पास लोन पे हैं, तुम लोग हमारे साथ डायरेक्टली काम कर लो। दिस स्टोरी इज़ एन आउट एंड आउट लाई, राइट? But in sales, when everybody is projecting themselves and you are not projecting yourself, so बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि if you say कि we are a 100-man company, yeah, okay, you are a small company in the US, ठीक? You say you are a 1,000-man company, okay, you are a small to medium enterprise in the US. वो आपको बहुत हाई लेवल पर प्रोजेक्ट करना पड़ता है, because देखें it's not fraud, because you can do the work. The work is the delivery that you ultimately have to show. Now, let's talk about the other side of it, which is the Pakistan's का collaborative work culture. It's a very topic very close to my heart. Games industry को बहुत close together लाने में I feel मैं और मेरे कई close CEO colleagues का बहुत बड़ा हाथ था. It's a very closely knit community. हम आपस में leads भी share करते हैं, projects भी share करते हैं. We do a lot of collaborative work, but it wasn't easy to do. It took almost 4-5 years, and I think कि जो core group बना 4-5 बंदों का, which actually made this happen, वो सारे business rivals थे. We all used to break people from each other. We all used to try and steal each other's clients. And one day, someone amongst us said कि यार ये हम क्या कर रहे हैं? Industry तो इस तरह grow ही नहीं कर सकेगी. So let me talk about the 5 fundamental pillars जो accomplish करने पड़ते हैं mindset change. The Pakistani mindset is not collaborative. The Pakistani mindset almost, and I'm not dissing on my own race. I feel कि हम किसी भी जनरेशन में दिस सो कॉल्ड माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं अपने आप को चेंज करके। अनफॉर्चुनेटली एज अ पीपल वी आर समटाइम्स फोक्स जो प्रेफर करते हैं कि मेरा अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो दूसरे का नुकसान हो जाए। दिस मेंटालिटी के 5-6 थिंग्स हैं दैट यू हैव टू ओवरकम इन ऑर्डर टू डू कोलैबोरेशंस। नंबर 1, you have to be okay with somebody else making money and you making nothing, because in fair trade 2 बार आप ये किसी के साथ करोगे ना, वेरी वेरी हॉस्पिटेबल पीपल, दूसरा बंदा तीसरी बार खुद ही आके कह देगा कि यार बिजनेस आ रहा है आपकी तरफ से, हमारे पास भी लीड आई है, आप ले लो,
या आई वुड लाइक टू डू कमीशन बिकॉज उसका सेल्फ इंटरेस्ट सर्व हो रहा है. यू हैव टू ओपन योर हार्ट्स अ लिटिल बिट. सेकेंड थिंग, कंपनीज इतनी छोटी हैं कि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कोई भी किसी के साथ HR के सिवा किसी चीज़ पे compete नहीं कर रहा. If you have business, even big companies here sometimes behave behind the mentality कि यार मेरे पास ना ERP का बिजनेस आ गया है, मैं उनके 200 बंदे तोड़ लेता हूँ, मेरी भी ERP की टीम आ जाएगी, मैं सेल कर लेता हूँ. As opposed to उनसे ही बात कर लो कि यार ERP का बिजनेस आया है, आप डिलीवर करते हैं, आप क्या डिलीवर करना चाहेंगे, हाउ कैन वी अरेंज बिजनेस टर्म्स. पीपल आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू दीज कॉन्वर्सेशंस बिकॉज होती नहीं है. बट बिलीव यू मी कि व्हेन यू गो एंड ट्राई एंड हैव दीज कॉन्वर्सेशंस, हो भी जाएंगी. थर्ड थिंग, रिसोर्स ट्रेनिंग का एक ह्यूज इशू है ना. एवरीबडी इज बिजी ट्रेनिंग रिसोर्सेज ऑन देयर ओन. आई से कि अगर आपको वर्टिकल पता है, if it is Salesforce that you're looking for, if it is games and animation that you're looking for, if it's web development that you're looking for, train people together. We are not training companies fundamentally. Fundamentally speaking, we are production companies. I feel कि training and pooling people के साथ resources together, देखिए very large companies, when the moment you cross scale of about 1,000, 2,000, you can do it on your own. You are the equivalent of 20 small companies. मगर small companies के लिए advice है कि अगर cohorts train करने हैं तो university से उठा के साथ में train करें और उनको supply करें. The last two ones are a little counterintuitive. Remember when I said कि जब आपका कोई client के पास lead है, a large amount of your connections ना are interactions to increase the relationship. आपने LinkedIn पे देखा और किसी बंदे ने कहा कि यार हमारे पास ये मसला हो गया है और आप नहीं सॉल्व कर सकते, मगर आपने नेटवर्किंग की हुई है, आपके नेटवर्क में कोई है. Your client will love you reaching out and be like, यार I heard तुम्हारा ये मसला हुआ है, ये मेरा एक दोस्त है, expert at solving this problem. So don't just think about what you can do for that client, even proactively. Think about कि आप किसी का कैसे actively फायदा करा सकते हैं. And trust. The final element is arguably speaking the hardest. Collaboration होती है, थोड़ा सा trust form होता है, एक business deal होती है, आपको लगता है दूसरे बंदे को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिल गया है, उसका HR आपके 2 बंदे तोड़ लेता है, आप कहते हो तो ये तो मेरी कंपनी को डुबाने पे तुला हुआ है. Trust is a very easy चीज़ to lose and a very hard thing to build. There is only one way to build it. कभी भी कुछ हो ना, you have to call somebody up and talk to them. Be like, यार ये डील थी, प्रॉफिटेबिलिटी ये थी, कैन यू शो मी द नंबर्स टू शो कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ और एक्चुअली इतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी जो तुम क्लेम कर रहे हो. यू कैन कॉल समवन एंड बी लाइक यार 1-2 बंदे उठाए हैं, एंड ऑब्वियसली ओपन मार्केट एंड दैट्स फेयर, मगर यार ज़्यादा ना उठाना एक ही डिपार्टमेंट से कंपनी का. इफ़ यू डोंट टॉक टू समवन, डू नॉट एक्सप्लेन टू योर पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स एंड पार्टनर्स कि आपको क्या कंसर्न्स हैं, तो दूसरे बंदे को कैसे समझ आएगी. वी आर नॉट माइंड रीडर्स, राइट. तो आई थिंक थोड़ा सा ओपन होना, थोड़ा सा ट्रस्ट करना, दूसरे को फायदे को देखना, and over time this culture will shift towards being more collaborative. Thank you, Ali, for such a great response, and thank you for being so thorough, so candid, and sharing such insightful information about such general questions that I asked. Thank you for that. And this is where these meetups and these sessions are coming from. That Devsinc is really trying to bring an environment, an ecosystem where we are open to collaboration and partnership, because we believe very strongly that individual growth is not that much possible as collaborative growth, because not a single pillar can like stand tall. A lot of small pillars can support each other and grow together. So looking forward to that growth. The panel is available to you guys for any questions, please. माइक पास करते हैं. यहाँ से चलें यहाँ से पूछ. Basically, मेरा question ये है कि since we spoke about reward setting, so how important is this that if we want to sell in Canada or North America, USA, तो वहाँ पे भी sales teams होना ज़रूरी है, यानी कि किस हद तक important है, और because हम इस वक्त competition के era में हैं, and you know वहाँ पे local Canada की बात करें तो local भी teams होंगी या local companies होंगी, या US की बात करें तो तो हमें उनके साथ ही compete करना है. तो इसमें कितना important है कि अगर आप यहाँ से remote कर रहे हैं तो जहाँ पे आप अपना trust या आप वहाँ की बैठे हुए instead के वहाँ पे local company है, local company ज़्यादा बेहतर तरीके से pitch कर रही है. So ये मैं पूछ. I think Waqas bhai can answer this slightly better. देखें,
large value, by the way, I think my mic is off now, but large value deals, but I'm a mic myself, so it's fine. Large value deals जो हैं वो आपको शायद directly access ना हो, मगर anything which is in the it's fine. आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, I'm sure in the back, right? Yes? अच्छा, no? Okay, thank you, Waqas भाई. तो large value deals access नहीं होंगी, but for anything sub $1 million, you don't need to have a remote presence. Remote presence is the special treatment वाला factor ना, कि when the deal is being closed, आप उनके office जा सकते हो, you can take them out for dinner sometime, and yes, those aspects, that kind of sales networking helps. But by and large, उन्होंने बिल्कुल सही earlier कहा था, American clients इससे काफ़ी immune हैं. American clients के साथ you can close low mid value deals purely on a remote basis. In fact, they almost prefer it. ये वो कल्चर डिफरेंस का मसला आ जाता है ना, दे कंसिडर इट अ वेस्ट ऑफ देयर टाइम. अगर आप उन्हें कह रहे हो यार चलो रैंडमली खाने पे मिलते हैं, वो आपको ईमेल में पूछ लेंगे एक लाइन में, कहते हैं एजेंडा क्या होगा. आप कहोगे हम खाना खाएंगे और फुटबॉल डिस्कस करेंगे, वो कहते हैं यार काम बता. राइट, तो आई फील कि वेस्टर्न मार्केट्स में सर्टनली एक्सेसिबल विदाउट अ टीम ऑन द ग्राउंड. नॉट दैट अ टीम ऑन द ग्राउंड डजंट हेल्प क्लोज लार्ज वैल्यू डील्स, इट डज. इसका एक और तरीके से भी एक आंसर देखा जा सकता है. सेम थिंग लाइक बट लाहौर में हाउ मेनी कंपनीज, IT कंपनीज आर देयर हु आर डूइंग $1 million एनुअल रेवेन्यू और प्लस. आप काउंट शायद कर सकते हैं. अगर मैं फिर सवाल पूछूं कि $5 million से ज़्यादा कितने काम कर रहे हैं, तो फिर तो उंगलियों पे काउंट करना शुरू कर देंगे. तो अगर आप 10 से ऊपर जाएं तो फिर तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन कर रहा है या कौन कौन नहीं कर रहा है. आपके क्वेश्चन का जो है ना ज़्यादा बेहतर आंसर ये है कि इफ़ यू वांट टू गो एंड इंक्रीज योर रेवेन्यूज बियॉन्ड दीज रीजन्स, then you have to actually have or invest like in resources and staff or BD team over there. क्योंकि यहाँ से बैठ के अकेला बहुत कम लोग हैं जो ब्रेक कर पाए हैं 10 मिलियन 20 मिलियन को, 5 मिलियन को भी इवन जो है ना. लेकिन अगर आपने ये देखना है कि बाकी दुनिया कैसे कर रही है, इंडियन मॉडल स्टडी करें तो वो कैसे करते हैं. वो इसी तरीके से करते हैं कि उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो भी ओवर $10 million एनुअल रेवेन्यू पे है, वो सब वहाँ पे टीम्स लेके बैठे हैं. अच्छा, जिन लोगों को उन टीम्स के लिए बजट्स नहीं है, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी 10 कंपनियाँ या 5 कंपनियों का कंसोर्शियम बना के एक टीम बना लेते हैं वहाँ पे, एंड वो कंसोर्शियम फंड करता है और फिर उसके हिसाब से वो जब काम आता है तो डिवाइड होता है कि किस कंपनी के थ्रू करवाया जाएगा. सो दिस इज़ वेयर लाइक कोलैबोरेशन एंड कंसोर्शियम ऑल्सो लाइक केम इन, एंड दैट एक्चुअली ब्रॉट इन द वैल्यू. बिकॉज आप अगर इसी लेवल पे प्ले करना चाहते हैं वेयर यू हैव 1 कस्टमर कमिंग इन, आई मीन 10 कस्टमर्स कमिंग इन द ईयर एंड यू लूजिंग 2 or 3 ऑफ देम लाइक जैसे ट्रेडिशनली चलता है, तो फिर तो ये रेस यहीं रहेगी. सो यू हैव टू इन्वेस्ट, इफ़ यू हैव टू इन्वेस्ट कोलैबोरेटिव जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. Other questions? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस. आप वहीं से बोलने की कोशिश करें. यस. मेरा उमर का नाम है. बेसिकली एक पार्टनरशिप रिलेटेड डिस्कशन हो रही थी, तो थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे, मतलब रोड मैप से. बेसिकली मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो तकरीबन 4 साल पहले मैं SEO की फील्ड में स्विच कर गया, अपनी फील्ड चेंज करके. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो चला रहा हूँ अपनी, बेसिकली मैं कंपनी तो नहीं लेकिन एक ऑफिस बनाया गुजरांवाला में, टीम है 10-15 लोगों की. तो अब मतलब मेरा प्लान ये है कि मैं इसी तरह चलूँ, 1-2 ईयर में अपनी कंपनी बनाऊँ और इसी तरह मूव करूँ. मतलब लेकिन कुछ लोग, जिस तरह पार्टनरशिप्स की बात हो रही, मतलब कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ दोस्त कज़न्स ये वो कहते हैं कि यार तुम क्या इस तरह चल रहे हो, तुम्हें लंबा जर्नी हो जाएगा. हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 2-3 करोड़ लगाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तुम मैनेज करो कंपनी. तो मतलब इस तरह चलते हैं. तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मैं चल रहा हूँ पर्सनली, मतलब अभी 10 लोगों की मेरे पास टीम है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ग्रो करूँ मैं पर्सनली और आगे मूव करता जाऊँ, अपनी टीम बनाता जाऊँ, जिस तरह मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएँ. जबकि मेरे कुछ कज़न्स हैं जो मतलब इन्वेस्टर्स, एज इन्वेस्टर मेरे साथ अटैच होने चाहते हैं, 3-4 करोड़ लगाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, आप लीड करो, ज़्यादा सर्विसेज बढ़ाते हैं, मैं सिर्फ SEO का काम करूँ. तो वो रोड में आप ठीक है कि ज़्यादा पैसे आपके पास होंगे, आप ज़्यादा जल्दी और पैसे बना सकेंगे.
सिंपल सी बात ये है, आप अगर अभी जैसे टीम रन कर रही हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर बात कर रही हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ साल में जो है ना, अगर छोटी टीम है तो 150% ग्रो कर सकती है मैक्सिमम, वो भी चक्का लगे तो। बड़ी टीम जब हो जाएगी तो वो आमतौर पे जो ग्रो करती है 30-40% के ऊपर ग्रो करती है। लेकिन अगर आपके पास में ज़्यादा फंड्स एक्सेसिबल होंगे और अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर्स को मैनेज भी कर पाएंगे, बिकॉज आप फंड्स लेके फिर उनको मैनेज ना कर पाएँ तो फिर भी ट्रबल होगी, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एज ए बिजनेसमैन कि आप उसको जो है परसू कर सकें, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपकी स्पीड अप हो जाएगी आपकी ग्रोथ। सो मतलब एक चीज़ पे कन्फ्यूजन है कि मुझे एक चीज़ डर लगता है कि यार पार्टनरशिप से ना, अभी जितना मैं कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ टेंशन फ्री, जब किसी की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हो जाएगी। यही पॉइंट मैं मेंशन कर रहा था ना कि अगर आप पार्टनर्स को हैंडल कर सकते हैं तो फंड्स ज़रूर लें, अगर नहीं कर सकते तो मत लीजिए। मैं कहूँगा इसका एक गोरा आंसर और एक जटका आंसर है। गोरा वाला पहले करते हैं। दुनिया भर में कैपिटल इज़ यूज टू ग्रो, राइट, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। पाकिस्तान में ये थोड़ी सी अनोमली है बिकॉज कैपिटल अवेलेबल नहीं है, राइट। मुझे किसी ने एक बार मजाक से कहा था कि फाइनेंशियल कैश फ्लो शॉर्टेज हुआ है तो बैंक से लोन ले लो। मैंने कहा पाकिस्तान में ना बैंक के लोन 23% पे होते हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक द US where you can get a 1% का लोन। अच्छा, जट का आंसर ये है कि देखें, कंपनी किसने चलानी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वैल्यू अर्न करके देनी है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर नहीं घुस सकते, आप उनको इक्विटी बेच सकते हैं, आप उनको प्रॉफिट शेयरिंग बेच सकते हैं, आपकी कंपनी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएगी, साइज ऑफ द पाई एक्सपैंड हो जाएगा। मगर अगर तो वो चाहते हैं ना कि हमने भी आपके ऑफिस के अंदर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो प्लीज़ बच के भाग जाएं। वैसे भी मेरी तो एडवाइस ही होगी कि फैमिली से जितना दूर रहना उतना ही बेहतर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और प्लीज। फुप्पो के बच्चों से तो स्पेशली। लास्ट क्वेश्चन, ये आगे दे दें भाई को। यस। Policy, American governments indirectly suggest their people to go for local talent. So how we can launch effective B2B strategies to capture maximum market or profit? So मैं आपका क्वेश्चन सुन के द फर्स्ट ह्यूमरस आंसर दैट कम्स टू मी इज कि ये क्वेश्चन भी चैट जीपीटी से आया है तो उसका आंसर भी चैट जीपीटी से आना चाहिए। मगर जोक्स असाइड, डोंट बिलीव द व्हाट यू हियर ऑन न्यूज़। द गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और उसके लोग क्या करते हैं, ये फंडामेंटली डिस्कनेक्टेड है। वी वर वर्किंग विद द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द US एंड दे वर लाइक हम ये करेंगे वो करेंगे, हम इन कंपनी से आपका इंटरेस्ट कराएंगे, बताएं आप किससे बात करना चाहती हैं। तो उनमें से जो एक बंदा उन्होंने चुना ना, वो एक्चुअली मेरा दोस्त था दूसरी साइड पे। तो मैंने कहा यार US स्टेट डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि वो मेटा से बात करवाएगा, वो ये करेंगे वो करेंगे। कहता है तुझे मेरे काम वैसे भी नहीं देना, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आ जाए या तो डायरेक्टली आ जा, राइट। दिस इज अ थ्योरी दैट गवर्नमेंट वांट्स टू डू समथिंग, राइट। It will very rarely convert into practice unless you are dealing with an ideological state. Maybe Saudi mein, if the government wants something, yes, that's exactly what's going to happen, and some other select countries. But in the majority of the markets we operate, they are not that dogmatic. All right. वैसे ये क्वेश्चन इप्री से था, रिसर्च पेपर से जो हमारी इस्लामाबाद। ओके, उसने चैट जीपीटी से लिया था।